रारापुर पीएस ने ओसी जे व्यक्ति केस खाने नो केस जो सती है कि नहीं नंबर कोई उल्टा केस खाने ही नहीं दाम रोक जब माती केस खाते का एडवोकेट होगा तो बन्मा एसपी ने थानियो एफआईआर करते क्या Date 27 July niya chang Radapur PS thang mane kaisa chini 25 ba FIR kaisa ungo FIR ro sawi no miya Radapur PS je complaint khainai bono rihinja kha complaint khainai rihinai bono sikri sokro khayo jeni mungoi te bo ulta case nai nung se thangai boro rono attack khayo o jaga to nung se chaya obte heke jatre pot kok sawi ke case no bono sikri hui case withdraw khainan bagai bono force khai tong ke je jaga o case kaisa criminal case oro nini oro attempt to murder charge bo oro thapa jagai manu nini oro obo sotonja attempt to murder boni oro sotonja go nini oro grievous hurt tongo je chaini loge o ni bor attack khaika bo bin bokora phati thangka so apte hero kabang mai abon loge te khorsa tongo a chaini bahano bo minor no bono bo buto khaija kha je buma boni pora ri shishigi bono buto khaija kha so belai kotor ni serious allegation plus serious charges ro okay so thepa jagota haifano also manino nugui phano je jaga o police ro ne kaisa responsibility ni amte case no bor warrant chara no pia bor no arrest khaimano pia hi warrant chara bor arrest khayo ulta bor rihine police station e rihine chini je complaint khaina na bor rihine bor matter no settle khaina nai tongo jeta sana thangka bor be ai niklayo belai no kotor be ai niklayo no jaga mo belai wana ma sitom to accept khaijane ko gya tam ninke Radapur High PS ni under ro kabang ma ni village ro kabang ma area ro cover ngo aboni logi bo chungja aro je OC ang Radapur PS na blame khaya ron je OC and lady constable. OC ta lady constable to ni je complaint khainai bono khuk khaimya sao khuk khamya bai sao je morajungma abon bagan ni basaino na yakari klang thango abte he kogro inkani ni OC bo same am thai kana OC ni bu mongka Krishna Sadan Jomatia aj constable ni bu mongka Ila Deborma so borok ni o attitude rok nga ka banga public tongai mano je jaga o amte khorsa bere je ni advocate tongo haipan se advocate tongo ni saimani pan khorsa bere ne boro apsa sawas mane ke FIR withdraw khadini sigri to am asuk serious crime o kam ta kamama matter na a area wo Radapur PS ni andar kamama ta matter na jeta por settle khai khinabo kaisa assumption o je case ni hoita ba ta je kaisa kirima hai hap ta wan chuma khai kha tai bas kang ni sal logo borok tumo chu o matter no chungkam chupchap khab ta ke no rohori rekhang ke bas kang ni sal logo ba te heta bongnai police Radapur ko PS ni borok am ta ke no khlainai ab te OC ro tumu to hang ke police ni samong main link ha police justice achieve khaina ne bagai je process to mane process ni kaisa part se so chungchi ni justice manang ka process ni kaisa part chung par khaima thango ta police som theke khai to honga ka chen boro bhai ke justice mannai ba lukuro bhai ke justice mannai ga to boro ni right ni pura complete violation ngi to ha ob the haina to chung tolerate khaime ase be aini ni illegal activity that is to from the police officials that's completely unacceptable boro amte hake je chini complainant no intimidate khai tongo sikriwi tongo je aba case no withdraw khai di settlement khai pai di abo belai no unacceptable abo no sauna chini tini chung SP ne ro chung complaint khai chung ro letter sika tai receive copy chung original chung submit khai ka inka logyo chini je FIR copy tomona abo ro chebe kha bes kang ni salo chung नाइना नाशिंगनाई जे SP तम एक्शन ना परसों यानी 25 जुलाई को हम लोगों ने एक FIR फाइल किया था राधापुर PS पर बहुत हीनियस कंप्लेन को लेकर एक औरत है जिसका 2 माइनर बच्चा है माइनर बच्चे के ऊपर अटैक किया गया था माइनर बच्चे का सर फटा दिया गया था उसके बाद वो जो औरत है उसके कपड़े को फाड़ कर उसे मारा गया था लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ 28 जनवरी 2026 पुलिस ने कोई भी केस नहीं ली रादर उन्होंने क्या किया मतलब सब पार्टी को बुलाकर म्यूचुअल सेटलमेंट मतलब ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया कि नहीं तुम लोग अपने आप में ये सेटल कर लो और उसके बाद उसको मतलब वो औरत को बोला कि नहीं तुम्हारा ये केस यहाँ पर नहीं हो सकता जब उसने मना किया सेटल करने से तो बोला कि तुम कोर्ट पे जाओ तुम फैमिली कोर्ट पे जाकर ये केस को वो करो हम लोग नहीं देख सकते ये सब तो
ये सब करके उन लोगों ने वो केस को ऐसे रद्द कर दिया उस डेट पर जब इंसिडेंट हुआ था। और इसके बाद औरत के पास कोई ऑप्शन नहीं था कहाँ से वो हेल्प ले, क्योंकि पुलिस ने तो डिनाई कर दिया कोई भी एक्शन लेने से। उसके बाद उसको थ्रेट देने लगा, मतलब जिन लोगों ने उसे अटैक किया वहां से उसको कॉल पे थ्रेट आने लगा और सामने से भी उसको थ्रेट दिया गया। उसके बाद उसने मतलब वो मजबूर होकर उसने मुझसे कांटेक्ट की और फाइनली 25 जुलाई, इस मंथ के 25 जुलाई को हमने एक कंप्लेन फाइल किया, एफआईआर किया राधापुर पुलिस स्टेशन पे। एफआईआर करने के बाद 26 को जिनके अगेंस्ट पे एफआईआर हुआ वो जिन्होंने एफआईआर की कंप्लेनेंट के एरिया पर जाकर उसके नाम पे ताक झाक करने लगा कि ये औरत कहाँ पर रहती है। तो लोगों ने नहीं बोला, एड्रेस नहीं बोला, तो उसके लिए बहुत रिस्की हो गया था वो सिचुएशन। तब हमने जीडी फाइल करने की कोशिश की, हमने पुलिस को खबर दी। जब जीडी के लिए हमने भेजा, मतलब एप्लीकेशन भेजा जीडी करने के लिए, जीडी एंट्री के लिए, तब पुलिस ने मतलब बहुत उल्टा पुल्टा सवाल कर रहा था हमारे कंप्लेनेंट से कि मतलब तुमने ऐसा ट्रीट कर रहा था उसके साथ जैसे कि वही अक्यूज्ड पर्सन है, वही कल्प्रिट है, वही मतलब दूसरों को अटैक किया, उसी ने दूसरों को अटैक किया, ऐसे ट्रीट कर रहा था एक कंप्लेनेंट को। तो उसके बाद चलो उन्होंने बोला, फिर जब हमने नहीं माना, लेकिन हमने बोला कि आप आकर इस मैटर को देखिए प्लस आप जीडी रिसीव कीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया जीडी रिसीव करने से। उन्होंने बोला कि मैं स्पॉट पे आकर देखूंगा। तो जब वो स्पॉट पे गया, कंप्लेनेंट के घर पे जाकर, स्पॉट पे जाकर, स्पेशली कंप्लेनेंट के घर पे भी गया वो उस दिन, जाकर उससे साफ साफ बोला कि मैंने तुम्हारे हस्बैंड को कॉल किया है, कल तुम और तुम्हारे हस्बैंड आकर इस मैटर को सेटल कर लेना, एफआईआर विथड्रॉ कर लेना। उसे साफ साफ ये बोलकर चला गया। तब उन्होंने कंप्लेनेंट ने मुझसे कांटेक्ट की, बोला कि मैडम ये हो रहा है। तो फिर हमें लगा कि वो नेक्स्ट दिन को कॉल नहीं करेगा। मैंने बोला कि थोड़ा वेट करो क्या करता है नेक्स्ट डे को। तो 27 को यानी कल कंप्लेनेंट को वो लोग कॉल करने लगा, कॉल करके मतलब बुलाने लगा एकदम, तुम्हें आना ही पड़ेगा। और वहां पर एक कांस्टेबल है, लेडी कांस्टेबल इला देबबर्मा, उसे अब्यूज करके बोलने लगा कि बीच इसलिए तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें छोड़ा है, ये बोलकर उसे अब्यूज करने लगा। उसके बाद क्या हुआ, उसने बोला कि मैडम मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन नहीं तुम्हें आना पड़ेगा, हमें नहीं पता तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें किसी भी हाल पे आना पड़ेगा। तब औरत ने मुझे बोला कि मैडम जो ये सब मुझे फोर्स कर रहा है, और मुझे भी समझ में आया उन लोग का इंटेंशन। फिर मैंने बोला कि नहीं तुम अकेले मत जाओ, हम लोग भी तुम्हें आकर तुम्हारे साथ जाएंगे, क्या पुलिस क्या कहता है हम देखेंगे कि वेदर दे कॉल्ड यू फॉर 161 और समथिंग एल्स। तो हम लोग गए पुलिस स्टेशन, जाकर पुलिस स्टेशन पे ओसी मतलब क्या बोल रहा था, इंटिमिडेट कर रहा था कंप्लेनेंट को, बोल रहा था कि तुम्हारे नाम पे तो वो लोग काउंटर केस कर सकता है, तुम्हारा ये जो केस है, जब ये जो हुआ तुम मतलब जब तुम वहां पर गए थे उन्होंने तुम्हें नहीं मारा, तुमने उन लोगों को मारा। तो फिर हमने बोला सर हमने तो आपको मेडिकल भी दिया ना, हमने जो कंप्लेंट फाइल की प्राइमा फेसी तो हमने एस्टेब्लिश कर दी, जो ऑफेंस किया गया था, जो ऑफेंस हमने मेंशन किया एफआईआर पे, उसका प्राइमा फेसी हमने दिखा दी, मेडिकल है, हमने फोटोग्राफ्स आपको दिखाया, हमने आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाया, फिर भी आप ये बोल रहे हो। फिर से हमने सबके सामने कॉल रिकॉर्डिंग सुनाया कल ओसी को, सबके सामने, जहां पर अक्यूज उन लोगों ने एक अक्यूज ने खुद ही कंप्लेन मतलब एडमिट किया कि उन लोगों ने अटैक की थी, और वो लोग बेहोशी के हालत से वहां से भाग आए थे। उन लोगों ने खुद से एडमिट किया कॉल रिकॉर्डिंग पर। बट फिर भी ओसी का बस एक ही बात, नहीं तुम जो भी हो, हम तो ये डिनाई नहीं कर रहे हैं, तुम लोगों ने भी मारा, तुम लोग के अगेंस्ट में भी काउंटर केस हुआ, वही बात घुमा फिरा कर। और बस यही कि उन लोग का बस यही है कि एफआईआर किसी भी हाल पे वो लोग विड्रॉ करवाना चाहता है कंप्लेनेंट के द्वारा। और कंप्लेनेंट, उनको पता है कि कंप्लेनेंट बहुत ही मतलब पोर फैमिली से बिलोंग करती है और उसका कोई नहीं है, उस सिवाय उसके बच्चे कोई नहीं है उसके पास उसको सपोर्ट करने वाला। तो यही मतलब जो राधोपुर पीएस के अंडर पे बहुत सारा गांव आता है, बहुत सारा एरिया कवर होता है, और पुलिस का ये एटीट्यूड
मतलब ये दिल पे एक एजम्पशन क्रिएट कर रहा है कि शायद ऐसी बहुत से इंसिडेंट होगा, इसी तरह वो लोग सेटल करके भेजता होगा, बहुत से क्राइम ऐसा होगा जो अनरिपोर्टेड रह गया होगा, जो एटीट्यूड हमने देखा। तो इट्स रियली पैथेटिक एंड कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल, क्योंकि पुलिस जस्टिस नहीं है ना। पुलिस जस्टिस अचीव करने के लिए जो प्रोसेस है, प्रोसेस का सिर्फ एक पार्ट है, एक स्टेप है। अगर ये सब एटीट्यूड दिखाएगा, ये सब काम करेगा तो कैसे चलेगा। तो इसीलिए हम आज आए एसपी के पास, एसपी सर के पास। तो हमने एसपी सर को कंप्लेन सबमिट किया, लेटर सबमिट की, और ये है रिसिप्ट कॉपी। तो अब देखते हैं कि सर क्या एक्शन लेता है। इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा। 1 जुलाई से 25 जुलाई तक अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अश्योर्ड गिफ्ट्स भी, और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा, स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।